Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYGC secretarial practice. As you all know, we have completed our first chapter, that is Introduction to Corporate Finance. Second chapter, that is Sources of Corporate Finance. And now we have started with chapter number third, that is Issue of Shares. And in that also we have completed introduction part, then issue of shares, then third, methods of issue of shares. In that we have learned about four methods, that is public offer, offering shares to existing equity shareholders, offering shares to existing employees, and private placement. And then we have also completed allotment of shares. Alright, so in chapter number third we have completed four parts, as you can see here. Now in our today's video we are going to discuss about procedure for allotment of shares. Now you must be aware about what is the meaning of allotment of shares. Allotment of share is nothing but the giving the shares to the applicant, those who applied for the shares. Okay, जिसने shares के लिए apply किया था, now company is giving them the shares, that is called as allotment of shares. Now when you talk about procedure for allotment of shares, so in procedure, in procedure always you have to follow the proper pointers. Okay, तो जैसे आपको pointers दिया हुआ है, point number 1, point number 2, point number 3, point number 4, point number 5, जिस तरीके से आपको pointers दिया है, so you have to write all the pointers on their place only. आप उस pointers को आगे पीछे नहीं कर सकते हो खुद से. Alright, so let's start now. Procedure for allotment of shares. Allotment of, one second. Okay. Allotment of shares means distributing shares to those applicant who have submitted a written application along with the application money. That means allotment of share means what? Giving the shares, distributing the shares to those applicant, those who have given the written application along with the application money. It is called as allotment of shares. Now following is the procedure for allotment of shares. Okay, as you can see here, there are total 8 points are there. So first, that is appointment of allotment committee. Then second, hold board meeting to decide basis of allotment. Point number third, pass board resolution for allotment. Point number fourth, collection of allotment money. Point number five, arrangement relating to letter of renunciation. Point number six, arrangement relating to splitting of allotment letters. Point number 7, file return of allotment. And point number 8, that is prepare register of members and issue share certificate. Okay, so there are total 8 pointers, 8 procedure which company has to follow at the time of allotment of debentures or shares to the applicant. Okay, so same thing we are going to learn in debenture also, but right now we are talking about what? Shares. So we will talk about shares only. Okay, so if a company wants to allot the shares to the shareholders, to the applicant, so in such case company has to follow this procedure. All right, now we are going to start with the first procedure, first point, that is appointment of allotment committee. All right, now when the subscription list is closed, the secretary informs the board of directors to make preparation for allotment of shares. So when the subscription list is closed, ये हमने देखा था पहले भी. When you talk about subscription list, so company can open subscription list for 3 days, minimum for 3 days and maximum for 10 days. Alright, so जैसे ही ये subscription list 10 days के बाद में close हो जाएगा, बंद हो जाएगा, at that time the secretary of the company has to inform to the board of directors to make preparation for allotment of shares. Now if the issue is par subscribed or undersubscribed. Now what is the meaning of par subscribed or undersubscribed? Example, if a company is issuing 1000 shares, okay, 1000 shares अगर issue हो रहा है, 1000 shares कंपनी ने issue किया and company received 1000 application. Okay, पूरा का पूरा शेयर बिक गया, जितना शेयर इशू किया उतना सब्सक्राइब्ड हो गया, दैट इज कॉल्ड पार सब्सक्राइब्ड, मतलब इक्वली हो गया. सब्सक्रिप्शन, इशू ऑफ शेयर्स एंड सब्सक्राइब्ड वो इक्वल है, उसको बोलते हैं पार सब्सक्राइब्ड. और दूसरा ऑप्शन है आपका अंडर सब्सक्राइब्ड, दैट मीन्स यू हैव इशूड 1000 शेयर्स, ओके, बट you received only 900, you can say 900 or you can say 800. Okay, we will take the example as 800 shares जो है वो क्या हुआ? सब्सक्राइब्ड हुआ. Okay, this subscription you can say it's under subscribed.
ओके, जितना इशू हुआ 1000 शेयर्स उतना सब्सक्राइब नहीं हुआ. Alright, the the board can do the allotment of shares. So we know that the board of director has the right to allot the shares. But if the issue is oversubscribed, okay, in case of par subscribed or undersubscribed, the board will allot the shares. यहाँ पे कोई problem नहीं होने वाला है. But when you talk about but if the issue is oversubscribed means what? 1000 shares issue किया कंपनी ने, company has issued 1000 shares, but the application which company received, that is around 1200. Okay, 1200 application company received. That means companies received the application more than the issue. Okay, in such case we can say shares are oversubscribed. But जब oversubscribed होता है ना, वहाँ पे मेजर प्रॉब्लम होता है कंपनी को, क्योंकि यहाँ पे अब जब अंडर सब्सक्राइब्ड हुआ या पार सब्सक्राइब हुआ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, शेयर्स को अलॉट कर देगा. बट यहाँ पे जब ओवर सब्सक्राइब्ड होगा तो ये केस में कंपनी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज टू अपॉइंट अलॉटमेंट कमेटी. ओके, तो देखते हैं आगे. द board has to but if the issue is oversubscribed, the board has to appoint an allotment committee to undertake the work of allotment. Okay, allotment committee कौन allot करेगा, the board. Okay, board will allot the allotment committee, appoint the allotment committee to make the work of allotment. ये लोग क्या करेंगे, सिंपल है, ये लोग डिसाइड करेंगे दैट ऑन विच बेसिस वी आर गोइंग टू अलॉट द शेयर्स. अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया क्योंकि शेयर्स क्या हो गया, ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया. अब किसको शेयर अलॉट करना और किसको नहीं करना, ओके, ये क्वेश्चन मार्क है. So that is why the board has appointed the allotment committee so that they can decide to whom we are going to allot the shares and to whom we are not going to allot the shares. Okay, the allotment committee will decide the basis of allotment and submit a report to the board. So allotment committee will decide the basis of allotment, that means on which basis we are going to allot the shares and submit a report to the board. Okay, they will submit a report to the board. अब जब बोर्ड को रिपोर्ट सबमिट होगा तो बोर्ड मीटिंग होगा, सिंपल सा बात है. तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी के बाद में आपका पॉइंट क्या आना चाहिए, होल्ड बोर्ड मीटिंग टू डिसाइड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट. ऑलराइट, बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू अप्रूव द अलॉटमेंट फॉर्मूला सजेस्टेड बाय द अलॉटमेंट कमेटी. जो कमेटी ने जो फॉर्मूला बनाया होगा ऑन विच बेसिस वी आर गोइंग टू अलॉट द शेयर्स, वो बेसिस यहाँ पे क्या होगा, अप्रूव होगा इन बोर्ड मीटिंग. अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेबी is also present when the allotment committee prepares the allotment formula. Okay, so at the time of preparing of allotment formula by the allotment committee, it is compulsory that there must be a SEBI representative should present in a meeting. Okay, जब ये फॉर्मूला बनेगा वहाँ पे SEBI का एक रिप्रेजेंटेटिव, SEBI मतलब क्या, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सो दिस SEBI has given some guidelines to the company. ओके, तो वो गाइडलाइंस फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखने के लिए SEBI sent a representative. Okay, if the shares are listed, the formula has to be also approved by the authorities of the concerned stock exchange. ओके, इन केस अगर कंपनी ने वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेच रही है, कंपनी वहाँ पे वो शेयर को लिस्ट करवाया है, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी दैट दे शुड इन्फॉर्म द फॉर्मूला और the basis on which they are going to issue a shares to the applicant. So they have to inform to the stock exchange also. All right, point number 2 आगे देखेंगे, continue. Once the allotment formula is approved, the application and allotment list is made. जैसे ही formula approved हो गया, they have to prepare application and allotment list. Okay, अब allotment list जो prepare हुआ है, ये list में क्या क्या होगा, let's see. This list contains the names of the allottee. Name of the allottee, that means the name of the person who wants to purchase the share of the company, that is the applicant who will be allotted shares. Okay, applicant जिसने अप्लाई किया है उसको कंपनी डिसाइड करेगी, उसका नाम लिखेगी इस लिस्ट के अंदर. The list has to be signed by chairman and the secretary. Now who is chairman? Chairman is nothing but the main the team of board of directors is there. Okay, उनका जो टीम होगा उसमें से एक मेन पर्सन जो होगा दैट इज अवर चेयरमैन. ओके, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके उसको सेलेक्ट करेंगे, वो होता है हमारा चेयरमैन. ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो यहाँ पे होल्ड बोर्ड मीटिंग होगा, वो बोर्ड मीटिंग में क्या होगा, यहाँ पे एक अलॉटमेंट शेयर जब अलॉट होगा, वो एप्लीकेशन एक लिस्ट बनेगा किसका,
जिनको शेयर हम अलॉट करने वाले हैं, ओके, उनका एक लिस्ट बनेगा। वो लिस्ट के ऊपर इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द चेयरमैन दैट द चेयरमैन हैज़ टू साइन ऑन दैट पे on that list, and apart from chairman, their secretary also has to sign the list. Now point number third, that is part board resolution for allotment. यहाँ पे डिसीजन हो गया कि on which basis we are going to allot the shares. अब यहाँ पे we have to pass a board resolution for allotment. हम लोग ने डिसाइड कर लिया, yes, on which basis we are going to allot the share. that means हम किसको अभी किसको हम लोग शेयर अभी देने वाले हैं और किसको हम लोग शेयर अब नहीं देने वाले. ओके, जिसको देंगे उनको हम लोग बोलेंगे अलॉटमेंट, और जिनको नहीं देने वाले वी कैन कॉल्ड रिग्रेट. ओके, जिनको हम लोग शेयर इशू करेंगे दैट इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, और जिसको शेयर इशू नहीं करेंगे उनको जाएगा लेटर ऑफ रिग्रेट. ऑलराइट, लेट्स सी नाउ. एट द बोर्ड मीटिंग अ रेजोल्यूशन इज पास टू अलॉट शेयर्स. ओके, बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ, दे पास अ रेजोल्यूशन टू अलॉट द shares. The resolution also authorized the secretary to issue letters of allotment and letter of regret. Okay, the resolution also authorizes the secretary to issue letter of allotment. Okay, दो letters है देखो, letter of allotment and letter of regret. letter of allotment किसको जाएगा, to whom company is going to allot the shares, and letter of regret किसको जाएगा, to whom company is not supposed to allot the shares. ओके, अलॉटमेंट ऑफ रिग्रेट, लेटर ऑफ रिग्रेट इसी को बोलते हैं. ओके, अभी जिन लोगों से भी कंपनी ने एप्लीकेशन मनी लिया होगा, तो विद दैट लेटर ऑफ रिग्रेट के साथ में कंपनी हैज टू रीपे द एप्लीकेशन मनी ऑल्सो टू द एप्लीकेंट. जिसने अप्लाई किया था उसको शेयर तो मिला नहीं, बट स्टिल उसने पैसा पे किया था मुझको एप्लीकेशन मनी. सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी और सेक्रेटरी दैट दे हैव टू रीपे द एप्लीकेशन मनी टू द एप्लीकेंट along with the letter of regret. Secretary has to send letter of allotment to allottees. Allottees means to whom company is going to give the share. That is those applicant whose names appear in the application and allotment list. जिसका नाम होगा allotment list में उनको कंपनी क्या देगा, letter of allotment. आगे देखते हैं. Secretary has to send letter of regret to those applicant to whom no share have been issued. जिसको कोई सा भी शेयर इशू नहीं हुआ है उनको कंपनी क्या सेंड करेगा, लेटर ऑफ रिग्रेट. Along with the letter of regret, the application money is also refunded. उनको शेयर तो मिला नहीं ना, शेयर तो नहीं मिला, बट उन लोगों ने पैसा दिया था, एप्लीकेशन मनी दिया था, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेक्रेटरी दैट दे हैव टू सेंड लेटर ऑफ रिग्रेट. दैट मीन्स सॉरी लेटर यू कैन से, and along with the letter of regret they have to give application money also to the applicant. Company which issue shares in electronic mode does not issue allotment letter to individual applicants. तो ये तो physical form of shares का process हमने देखा. But if you talk about electronic mode, that means demat account if a company is going to issue. So in such case, company is not supposed to send the letter of allotment. All right. Now, company inform the respective depository. Okay, company has to inform the respective depository. Depository मतलब कौन, NSDL और CDSL. अब NSDL का फुल फॉर्म क्या है वो आप लोग सुन लो, आगे भी मैंने आपको बताया हुआ है. नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट CDSL उसका होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड. ऑलराइट, तो अभी ये डिपॉजिटरी होते कौन है, सी इफ यू आर गोइंग टू बीइंग अ कंपनी, सपोज आई एम द कंपनी एंड यू आर द इन्वेस्टर्स. अगर मैंने शेयर इशू किया हुआ, इफ आई हैव इशूड अ शेयर इन अ मार्केट, तो जो भी शेयर आप परचेज करोगे वो आप कंपनी से डायरेक्ट परचेज नहीं कर सकते हो. तो उसके बीच में एक एजेंट होता है, एक लिंक होता है. ओके, उस लिंक के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उस लिंक के थ्रू आप शेयर को परचेज कर सकते हो. और जो लिंक होता है, जो एजेंट्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज डिपॉजिटरी. ओके, तो आप कंपनी का शेयर, अगर आप रिलायंस कंपनी का शेयर परचेज कर रहे हो तो आप रिलायंस कंपनी से डायरेक्ट परचेज नहीं करोगे शेयर, आप उस डिपॉजिटरी से, उस एजेंट से शेयर परचेज करोगे रिलायंस कंपनी का, तो उसको बोलते हैं डिपॉजिटरी. दैट इज, उसका एग्जांपल दिया हुआ है NSDL और CDSL अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. तो आपको यहाँ पे इनको डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, मतलब कंपनी जो होगी वो कंपनी इनको इन्फॉर्म करेगी. ऑलराइट. It provides the depository with the detail of applicants who have been allotted shares, numbers of shares allotted, etc. Okay, so ये depository को क्या inform करना पड़ेगा? Company has to provide the
information to the depository with details of applicants who have been allotted shares. कितना shares उसको allot हुआ है, numbers of shares, allotment money कितना उसने pay किया है, all such thing they have to inform to the depository. Now point number 4, अभी एक बार रिवाइज कर लो यहाँ से. देखो सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट हमने क्या किया, अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमेटी. अलॉटमेंट कमेटी को अपॉइंट किया कौन से केस में, जब कंपनी का शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ, वो टाइम पे हमने अलॉटमेंट कमेटी को अपॉइंट किया, पहला चीज. देन अलॉटमेंट कमेटी का क्या काम है, दे हैव टू डिसाइड द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, दैट मीन्स ऑन विच बेसिस वी आर गोइंग टू अलॉट द शेयर्स. ये कौन डिसाइड करेगा, अलॉटमेंट कमेटी. अब उन लोगों ने जो रिपोर्ट है वो बनाकर बोर्ड मीटिंग में लाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल डिसाइड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, दैट मीन दे विल डिसाइड ऑन विच बेसिस वी आर गोइंग टू अलॉट द शेयर्स. अब यहाँ पे एक किसी भी पर्टिकुलर बेसिस को हमको फाइनल करना पड़ेगा, और जैसे ही वो फाइनल हो जाएगा, ओके, सबने अगर यस बोल दिया उस फॉर्मूले के ऊपर, देन बोर्ड हैज़ टू पास अ रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट. अब बोर्ड क्या करेगा, एक रेजोल्यूशन पास करेगा. उसमें क्या होगा कि हम लोग किस किस को शेयर्स अलॉट करेंगे और किसको हम लोग शेयर नहीं अलॉट करेंगे. दैट मीन्स जिसको हम अलॉट करेंगे, अलॉटीज उसको बोलते हैं, उनको जाएगा लेटर ऑफ अलॉटमेंट, और जिनको शेयर अलॉट नहीं हुआ उनको जाएगा लेटर ऑफ रिग्रेट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी. नाउ अब जिसको कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिया, जिसको कंपनी ने शेयर दे दिया, अब उनका ड्यूटी है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अलॉटमेंट मनी पे करेंगे. अलॉटमेंट मनी पे करेंगे. कंपनी जो लेटर भेजेगा उनको, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, उसमें कंपनी मेंशन करेगा हाउ मच मनी यू आर सपोज टू पे इन अ फॉर्म ऑफ अलॉटमेंट मनी. ओके, नाउ लेट्स सी पॉइंट नंबर 4, collection of allotment money. The letter of allotment states the money to be paid by the applicant on allotment of shares. Okay, जो ये letter जो होगा उसमें क्या होगा, how much money that applicant supposed to pay to the company will mention that those all details in a letter of allotment. आगे देखते हैं. The company has to be paid in the bank specified by the company within the stipulated time. The money has to be paid. Okay, the applicant, those who supposed to purchase the share of the company, that person have to pay the money to the बैंक स्पेसिफाइड बाय द कंपनी. मतलब जिस बैंक को कंपनी ने आपको पे करने के लिए बोला है, आपको उसको पे करना पड़ेगा विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम. जितना टाइम कंपनी ने आपको दिया होगा, ड्यूरिंग दैट टाइम यू हैव टू पे द अलॉटमेंट मनी. ऑलराइट, नाउ पॉइंट नंबर 4. अभी यहाँ पे आप अलॉटमेंट मनी जो है वो आपने भेज दिया. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अरेंजमेंट रिलेटिंग टू लेटर ऑफ रिनाउंसिएशन. Now what is the meaning of renunciation? Renunciation is nothing but the formal rejection. Okay, formal rejection, that means you are the applicant, आपने अप्लाई किया था, अभी मैंने आपको शेयर अलॉट करने के टाइम पे आपने मना कर दिया कि आपको शेयर नहीं चाहिए. ओके, यू डोंट वांट टू बी अ शेयर होल्डर ऑफ माय कंपनी, मना कर दिया आपने. तो वो केस में क्या होगा, आपको जाएगा लेटर ऑफ रिनाउंसिएशन. ओके, देखते हैं क्या है उसको. An applicant who has been allotted shares can renounce the shares in favor of another person. Okay, जिसको शेयर अलॉट हुआ, जो अलॉट कंपनी ने जिसको अलॉट किया, वो पर्सन क्या कर रहा है, रिनाउंस कर रहा है टू द शेयर्स इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन, किसी और को. The applicant has to fill up a form for renunciation and submit it with the original copy of the letter allotment to the company. Okay, those who wants to renunciation, those who going to renounce the shares to another person, मतलब किसी और को शेयर दे रहा है, खुद नहीं ले रहा है, तो वो केस में क्या करना पड़ेगा, दैट पर्सन को उसको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म ऑफ रिनाउंसिएशन, एंड उसको सबमिट करना पड़ेगा दैट फॉर्म, ओरिजिनल कॉपी ऑफ द फॉर्म टू द कंपनी. ओके, नाउ आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड, अब ये लेटर या अप्रूव होने के बाद में सेक्रेटरी एंटर्स द नेम ऑफ द न्यू अलॉटीज इन द एप्लीकेंट एंड अलॉटमेंट लिस्ट. अभी जिस पर्सन का नाम था, जिसको शेयर अलॉट हुआ था, उसने क्या किया, उसने किसी और पर्सन को दे दिया शेयर. ओके, तो वो केस में कंपनी क्या करेगा, जो प्रीवियस अलॉटी था हमारा, जिसको हम लोग ने शेयर अलॉट किया, वो शेयर्स किसको जाएगा, किसी दूसरे पर्सन को चला जाएगा. ओके, और उस पर्सन, पहले वाले पर्सन का नाम रिमूव हो जाएगा और दूसरे पर्सन का नाम अलॉटमेंट लिस्ट में आ जाएगा. ओके, तो सी रिनाउंसिएशन मीन्स व्हाट, द फॉर्मल रिजेक्शन ऑफ समथिंग. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 6.
अरेंजमेंट रिलेटिंग टू स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर. ओके, अरेंजमेंट रिलेटिंग टू स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर. अभी हम लोग को देखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर्स. ओके, रिनॉन्सिएशन तो हमको समझ में आ गया. नाउ लेट्स सी. समटाइम द एप्लीकेंट who has been allotted shares can request for splitting of a allotment letter. बेसिकली इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल है बिल्कुल भी. अगर किसी एक पर्सन के नाम पे शेयर अलॉट हुआ और उसको चाहिए कि वो शेयर जो है मेरे मेरे नाम पे भी हो और मेरे साथ में किसी एक मेरा दोस्त या मेरे घर में मेरी फैमिली मेम्बर कोई होगा उसका भी नाम इस शेयर्स में आना चाहिए. मतलब एक शेयर अगर होगा तो उस पर दो लोग के नाम पे होगा वो शेयर के, मतलब दो शेयर होल्डर्स होंगे एक शेयर के. ओके, तो वो देखते हैं. स्प्लिटिंग. स्प्लिटिंग मीन्स पुटिंग द शेयर्स इन वन और मोर नेम. पुटिंग द शेयर इन वन और मोर नेम. After getting the approval of the board for the splitting, secretary enters the details of the split in the list of split allotment. ओके, अगर ये केस में स्प्लिट हो रहा है, अगर स्प्लिट कोई कर रहा है, मतलब एक शेयर दो से एक या एक से ज़्यादा के नाम पे है, so it is the duty of the secretary that he has to enter the detail of the split in the list of split allotments. Secretary has to also issue split letters. Okay, split letters करके जो पर्सन स्प्लिटिंग कर रहा है उसको बताना पड़ेगा कि वी हैव एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट. ऑलराइट, नाउ पॉइंट नंबर 7, दैट इज फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट. रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, दैट मीन्स if a company is issued a allotment, if a company has allotted the shares to the shareholders, in such case it is a responsibility or provision of the uh, company act that it says that company has to register those shares. Company has to give the copy of the allotment letter file to the registrar of company, that is ROC. सिंपल सा, जैसे आज अगर अलॉट हो गया शेयर्स तो 30 दिन के अंदर विद इन 30 डेज कंपनी द सेक्रेटरी हैज़ टू फाइल अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट. मतलब अलॉटमेंट का एक कॉपी जो है वो किसको सबमिट करना पड़ेगा? टू द ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, विद इन 30 डेज. लेट्स सी नाउ. Secretary has to file a return of allotment with the registrar of companies ROC within 30 days, within 30 days of allotment of shares. Okay, आगे देखते हैं. The return of allotment contains detail of allotment of shares including the name, address of allottees, value of allotted, अमाउंट पेड और पेबल ऑन ईच शेयर्स. ओके, तो ये सारी चीज़ें रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में सेक्रेटरी को मेंशन करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? नेम ऑफ द पर्सन टू हुम कंपनी इज गोइंग टू अलॉट द शेयर्स, एड्रेस ऑफ द अलॉटीज, वैल्यू ऑफ शेयर अलॉटेड, कितना शेयर का कितना वैल्यू का शेयर अलॉट किया, अमाउंट पेड उसने कितना पे किया, और पेबल ऑन ईच शेयर और कितना उसने इंडिविजुअली एक शेयर के ऊपर पे किया हुआ है. ऑल सच डिटेल कंपनी हैज टू राइट इन रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, एंड this return of allotment, the copy of the return of allotment company has to give to the ROC, that is registrar of company, within 30 days of allotment of shares. Okay, ये था आपका point number 7. Now let's talk about point number 8. Prepare register of members and issue share certificate. अभी देखो, जिस पर्सन को, जिस एप्लीकेंट को कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिया, now company has allotted the share to the person. Now that applicant once that person get the shares, that person becomes the shareholder of the company. And when a person becomes the shareholder of the company, it is a responsibility or duty of the secretary of the company that the secretary of the company should write the name of the person in the register of members. ओके, एक रजिस्टर बनेगा जहाँ पे सारे शेयर होल्डर्स के नाम लिखते हैं. उस रजिस्टर में इस पर्सन का भी नाम सेक्रेटरी को लिखना पड़ेगा. ओके, ये होने के बाद में, नाम लिखने के बाद में, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी और एज पर द प्रोविजन कंपनी हैज़ टू सेंड इशू अ शेयर सर्टिफिकेट टू द अलॉटी. जिसको शेयर अलॉट हो गया वो पर्सन क्या बन गया? शेयर होल्डर बन गया. नाउ कंपनी को क्या करना पड़ेगा? उसको शेयर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा, देना पड़ेगा. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 8 अगेन. The secretary has to enter the names of all those applicants who have paid the allotment money in the register of members. मतलब उनका नाम लिखेगा जिन लोगों ने अलॉटमेंट मनी दे दिया. सिंपल सी बता, अलॉटमेंट मनी देंगे तो ही वो लोग शेयर होल्डर बनेंगे कंपनी के, तो ही उनको शेयर अलॉट होगा. तो जैसे उन लोगों ने मनी पे कर दिया, अलॉटमेंट मनी, तो सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी विल राइट द नेम ऑफ द पर्सन इन रजिस्टर ऑफ मेंबर.
Secretary also has to prepare the share certificate and distribute it to all the members. Okay, the secretary will prepare the share certificate and distribute it to the members. जिस लोगों ने अलाउ एप्लीकेशन दिया था, जिनको शेयर अलॉट हो गया है, उनको क्या जाएगा, शेयर सर्टिफिकेट जाएगा विद इन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है सी, विद इन 2 months ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. कितने टाइम में, 2 महीने के अंदर. जैसे ही शेयर अलॉट हुआ आज, तो आज से लेकर विद इन 2 months उनको क्या मिलना चाहिए, शेयर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए. 2 month मतलब 60 days. इन केस ऑफ शेयर हेल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अगर डिमेटलाइज फॉर्म में है, द एंट्रीज ऑफ एप्लीकेंट्स आर मेड बाय द डिपॉजिटरी. ओके, डिमेटलाइज फॉर्म में अगर होगा, डिपॉजिटरी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, तो इन सच केस द एंट्री ऑफ एप्लीकेंट्स आर मेड बाय द डिपॉजिटरी. मैंने बताया था एजेंट जो होता है, जो लिंक होता है एक कंपनी के बीच में और शेयर होल्डर के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी. ओके, सो इट वाज योर पॉइंट नंबर 8. सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज, जितना भी आपको यहाँ पे मैटर दिख रहा है राइट फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 8, ये आपको सीक्वेंस वाइज में ही लिखना है. आप अगर बोलोगे सर जो पॉइंट नंबर 3 आपको यहाँ पे दिख रहा है, पॉइंट नंबर 3 दैट इज पास बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट, मैं इसको फर्स्ट नंबर पे लिखूंगा तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर एक स्टोरी के जैसे कुछ चल रहा है. ओके, एक स्टेप कंप्लीट होगा तो उसके बाद में सेकंड स्टेप आएगा, सेकंड स्टेप कंप्लीट होगा तो थर्ड स्टेप आएगा. तो कंपनी हैज़ टू फॉलो दिस प्रोसीजर. ओके, तो आपको भी आंसर लिखने के टाइम पे प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. ऑलराइट, बट स्टिल अगर आपको ये पूरे पॉइंट जितने भी हमने डिस्कस किया, कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ प्रिपेयर योर नोट्स, स्टार्ट योर स्टडीज़. आपके पास टाइम बहुत कम है, सो इट्स बेटर टू स्टार्ट from today, and it is very important to prepare your notes. okay, notes prepare करो अच्छे से, तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में भी आता रहेगी जो यहाँ पे आपने सीखा. ओके, उसको किस तरीके से लिखना है, that you will understand. Alright students, so till then, thank you very much students.